रहमान रहीम टेस्ट नंबर 2 सेकंड ईयर और डेट है आज 23। आज है सेकंड ईयर का जो टेस्ट है वो है आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 देखे, a force experienced by a moving charge in magnetic field is option B। क्वेश्चन नंबर 123 में है ऑप्शन बी, 123 में है ऑप्शन बी, a force experienced by a charged particle in magnetic field। इसके लिए फार्मूला है F is equal to Q V cross B, where V is the velocity of the charged particle, B is magnetic field, and Q is the charge on the charged particle. So the expression for the force on the charged particle in magnetic field is F is equal to QV cross B. Option B is the correct option. Now 124. The unit of magnetic flux density is Tesla, and it can also be expressed as 1 Newton per ampere per meter. 124 में है option D. Q, Tesla is the unit of magnetic field, and 1 Tesla equals to 1 Newton per ampere per meter. Option D. Option D is the correct option. Now, F is the maximum force acting on a conductor. 125. Question number 125. If F is the maximum force on the conductor, now if we change the direction of angle, if we change the direction and the angle now become 45 degree with the magnetic field, then what will be the force? Initially 125 में initially maximum force on the conductor है ILB. ILB. Now if the angle change to 45 degree, then what will be the force? What will be the force? So the simple equation, the general equation for the force on the conductor ILB sine theta. Now angle change to 45 degree. So F is equal to ILB or sine 45 degree. F is equal to ILB sine 45 equals to 1 by 2 under root, and the force become F is equal to ILB divided by 2 under root maximum force divided by 2 under root, and the correct option is option B. Option B is the correct option in 125. 125 में क्या आ रहा है? Option B is the correct option. Now, question number 126. Two long parallel conductors which are free to move are arranged in 0.1 centimeter apart. The steady current of 20 ampere flow in each of the conductor in the same direction. Then the conductor move towards each other. Because when the current carrying conductor carry current in the same direction, then these conductor will attract each other. If two conductors carry current in the same direction, then there will be attractive force between the conductor. And why there is attractive force? इसलिए क्योंकि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दरमियान में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। एंड एक्चुअली इफ द करंट आर सेम, सो दे विल चेंज दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कम होगा क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, इसका डाउन है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा? B1 माइनस B2। इधर मैग्नेटिक फील्ड कम और साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगेगा टुवर्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हेन द कंडक्टर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, these conductor will attract each other, and if they are free to move, they will move toward each other. The conductor will move toward each other, and option B is the correct option. Now 127 इसमें आ रहे, 126 में आ रहे option B. Option B is the correct option in 126. Now 127 में है the magnetic field strength is measured in Weber per meter square. Option C. 127 में आ रहे ऑप्शन सी। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बता रहे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया।
and the unit of magnetic flux is Weber, or the unit of area is meter square. Weber per meter square is the unit of magnetic field, and the correct option in 127 is option C. 127 में correct option क्या है? Option C. Weber per meter square. This is the unit of magnetic flux density or magnetic field strength. Now 128. We have two conductors and they carry current in opposite direction. Question number 128 में है, if we have two conductors and they carry current in opposite direction, तो किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? 128 में इस तरह क्वेश्चन गिवन है, एक कंडक्टर है Y और एक कंडक्टर है Z, तो किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसकी वैल्यू ज्यादा होगी? देखिए, जब कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करता है, ये पॉइंट है X, जब कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करे तो उन कंडक्टर्स के बीच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और उसकी वैल्यू होगी B1 प्लस B2, क्योंकि जब कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते तो मैग्नेटिक फील्ड दरमियान में वीक हो जाता है और या वीक होता है और उसकी वैल्यू होती है B1 माइनस B2। नाउ अगर कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करेगा तो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा और उसके लिए है B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। तो बता रहे किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? इस पॉइंट पे कम, इस पे कम, और दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों कंडक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड के सम के बराबर होगा। तो पॉइंट X पे मैग्नेटिक फील्ड Y और Z से ज्यादा होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ X इज स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ Y एंड Z। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और उसके लिए है 128 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इन 128। नाउ 129, क्वेश्चन नंबर 129। The value of magnetic flux is 10 Weber when the magnetic field line of force containing magnetic field strength of 1 Tesla passing through the area of 10 meters square. What is the angle between magnetic field and direction of and B? Magnetic field and direction of area. देखिए, आपको बता रहे 129 में 129 इसमें आपको बता रहे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1 टेस्ला और एरिया कितनी है 10 मीटर स्क्वायर, सरफेस की एरिया 10 मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फ्लक्स है 10 वेबर। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए? तो इसके लिए फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू बी ए इंटू कास थीटा। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है बी ए इंटू कास थीटा एंड कास थीटा इक्वल्स टू magnetic flux divided by BA. So what is the value of magnetic flux? 10. What is the value of B? 1. What is the value of A? 10. 10 by 10, 1. So cos theta equals to 1 and theta equals to cos inverse 1 और cos inverse 1 हमें 0 डिग्री देता है। क्यों 0 देता है? क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 के और cos इनवर्स 1 अगेन हमें 0 देता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 129 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन एंड 0 डिग्री विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 130। 130 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 130 देखें। क्वेश्चन नंबर 130 में द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड ऑफ एरिया ए and having number of turns in at right angle to B. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फार्मूला है NBA और जब सरफेस परपेंडिकुलर पड़ा हो तब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा और जब सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने पैरेलल पड़ा हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। इधर सरफेस परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है NBA एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ 131। If you change the magnetic flux linking with the coil rotating in a constant magnetic field, the rate of change of this flux is proportional to EMF. Question number 130 में आ रहे ऑप्शन बी। ये है 130 और इसका आंसर है ऑप्शन बी। अभी 131 में देखें, 131 में बता रहे कि फ्लक्स लिंकिंग कॉइल के साथ जो फ्लक्स है उसमें चेंज आ रहे, कॉइल के साथ जो फ्लक्स कनेक्ट है उसमें चेंज आ रहे, तो क्या प्रोड्यूस होगा 131 में? is proportional to the EMF induces in the material। ठीक,
तो उसके लिए ऑप्शन ए 131 में आ रहे ऑप्शन ए, जिधर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, उधर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। EMF produces in the coil whenever the magnetic flux linking with the coil change। तो इधर लिखा है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंज हो जाए तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, कॉइल में EMF प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। नाउ 131 में ऑप्शन ए 132 Lenz's law is the electromagnetic induction is the direct consequence of law of conservation of energy। 132 में बता रहे कि Lenz's law किस कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, तो Lenz's law बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द करेक्ट ऑप्शन इन 132 में करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एनर्जी, ऑप्शन ए एनर्जी। Lenz's law इज द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि Lenz's law आपको ये बता रहे कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए तो ईएमएफ किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो उसमें जो मोशन होता है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए हम कहते हैं कि Lenz's law डायरेक्ट कंसिक्वेंस है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। 133 में देखें द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द आउटपुट करंट इज रिड्यूसेस और रिमेन सेम और इंक्रीजेस। 133 में बता रहे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट करंट कम होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट करंट ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डिक्रीज होता है, आउटपुट वोल्टेज कम होता है, इसलिए करंट क्या होगा, करंट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है, आउटपुट वोल्टेज कम होता है और आउटपुट करंट बढ़ता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 133 में है करेक्ट ऑप्शन सी, करंट बढ़ेगा क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम होता है, करंट बढ़ेगा, करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन है, इनवर्स इन ट्रांसफार्मर, तो इसमें है ऑप्शन सी। 134 if we give a direct current to the transformer of primary coil of transformer then there will be no EMF produces in the secondary coil। ऑप्शन बी। 134 में क्या बता रहे, 134 में बता रहे कि अगर हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल को डायरेक्ट करंट दे तो फिर क्या होगा, अगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल को डायरेक्ट करंट दे, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूसेस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा और उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो फिर प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ सकती और ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। 134 में ऑप्शन बी कि अगर हम डायरेक्ट करंट प्राइमरी कॉइल को दे तो ऑप्शन बी में लिखा है नो ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन द सेकेंडरी कॉइल। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में तब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जब प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और डायरेक्ट करंट जो है ना वो फ्लक्स को चेंज नहीं करता। 134 ऑप्शन बी। 135 में लिखा है इन ए practical transformer the mutual induction between the primary and secondary coil take place, which statement is correct। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है और एफिशिएंसी के लिए क्या फार्मूला है, 135 में आ रहे ऑप्शन डी। एफिशिएंसी के लिए क्या फार्मूला है, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर आउटपुट कम होगा और पावर इनपुट ज्यादा होगा। तो अगर ये कम होगा और ये ज्यादा होगी तो एफिशिएंसी 100% से कम आएगी और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% से हमेशा कम होती है, इसलिए पावर आउटपुट लेस एंड पावर इनपुट ग्रेटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 136 में देखें the net magnetic field created by electron within the atom is due to the orbital and spinning motion of electron। the basic part is spinning, जो है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड में बेसिक पार्ट जो है ना वो स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल और स्पिनिंग मोशन दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 136 में है ऑप्शन सी।
136 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और 135 में जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 135 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 136 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। नाउ 137, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? 137 में बता रहे कौन सा रिलेशन ठीक है, करेक्ट रिलेशन इसमें कौन सा है? 137 देखे 137, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, देखे वेबर per meter square is the unit of magnetic field and the second unit of magnetic field is Newton per ampere per meter per ampere। दूसरा है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 टेस्ला। ये भी ठीक, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टेस्ला कहते हैं। ये भी ठीक। और 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ gas is the unit of magnetic field in CGS system। ये भी ठीक। और all of these, डी में है all of these। तो इसलिए 137 में है डी, 137 में है डी all of these। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। और 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ gas, ये दोनों भी बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट एमकेएस सिस्टम में और ये सीजीएस सिस्टम में। तो सारे ऑप्शंस ठीक है। 137 ऑप्शन डी। 138, 2 parallel long wires carry the same current and repel each other with a force F। If both the currents are double, if both of these, दोनों वायर्स में करंट को डबल करे and the distance between the wires become triple, what happens to the magnetic force? देखे आपको बता रहे दो कंडक्टर्स है और एक करंट कैरी करता है I1, दूसरा करंट कैरी करता है I2। 138 में एक करंट कैरी करता है I1, दूसरा करंट कैरी करता है R2, इनके बीच डिस्टेंस है R। अगर हम I1 को भी डबल करें, I1 को भी डबल करें और I2 को भी डबल करें और डिस्टेंस को ट्रिपल करें, डिस्टेंस को ट्रिपल करें, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स का क्या होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, I2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। तो देखें अगर आप करंट को डबल करेंगे, एक करंट को डबल करेंगे तो फोर्स डबल हो जाएगा। अब दूसरे कंडक्टर में भी करंट को डबल करेंगे तो फोर्स फिर डबल हो जाएगा। और अगर आप डिस्टेंस को 3 टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स 3 टाइम कम हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा 2 2s are 4 डिवाइडेड बाई 3 और इससे आ जाएगा 4F डिवाइडेड बाई 3। 4 टाइम फोर्स बढ़ा ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन करंट। और 3 टाइम क्यों कम हुआ? क्योंकि कंडक्टर के बीच आपने डिस्टेंस को कम किया। इसलिए करेक्ट ऑप्शन 4F डिवाइडेड बाई 3। 138 में क्या आ रहा है? 138 में आ रहा है बी। इसमें है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। ये है 138। नाउ 139 को सॉल्व करते। ये हुआ 138। क्वेश्चन नंबर 139, द ईएमएफ डेवलप इन कॉइल X is due to the current in the neighboring coil Y is proportional to the current in Y। क्यों? क्योंकि EMF and X mutual induction, EMF and X is directly proportional to time rate of change of current in Y। Y coil में जितना करंट चेंज होगा X में उतना EMF प्रोड्यूस होगा, और अगर X में करंट चेंज होता है और Y नाइबरिंग कॉइल है तो Y में उतना EMF प्रोड्यूस होगा। इसके लिए म्यूचुअल इंडक्शन में द ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नाइबरिंग कॉइल Y, जिसको करंट मिला है। तो इसमें है ऑप्शन डी, करंट इन द Y। द ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन द X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन Y, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है। इसमें है ऑप्शन डी। नाउ 140, द यूनिट ऑफ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ मोशनल ईएमएफ देखे हर किस्म के ईएमएफ का इसमें है 139 में है ऑप्शन डी, 139 में है ऑप्शन डी। ये तो हुआ। नाउ 140 में आपको बता रहे 140 में कि द यूनिट ऑफ मोशनल ईएमएफ, हर किस्म ईएमएफ का, स्टैटिक ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, हर किस्म ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट।
और वोल्ट किसके बराबर होता है? वोल्ट बराबर होता है वेबर इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। इसके लिए ऑप्शन क्या है? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय, इसके लिए टेस्ला है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड। किस तरह देखें, ईएमएफ का यूनिट है वोल्ट और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ बराबर होता है एन बी ए डिवाइडेड बाई टी, एन बी ए डिवाइड बाई टी। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं है, इसका है नो यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट है पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ एन बी ए डिवाइडेड बाई टी और एन बी ए डिवाइडेड बाई टी बराबर है ईएमएफ के। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड इक्वल्स टू वोल्ट। तो 140 में बता रहे कि मोशनल इंड्यूस ईएमएफ का क्या यूनिट है? तो मोशनल इंड्यूस ईएमएफ का यूनिट वोल्ट है और वोल्ट इसके बराबर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी। 140 में कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन 140। समझ आ गई इसकी? ना 141 में देख ले, ये तो हुआ 140। 141 में अब देख ले 141, the magnetic flux through the certain region is changing with time, the EMF must produces exist around the boundary। ऑप्शन डी। 141 में बता रहे कि जिधर फ्लक्स चेंज होगा तो इधर जरूर क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जिधर फ्लक्स चेंज होता है उधर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो 141 में क्या आ रहे? 141 में आ रहे ऑप्शन डी, 141 ऑप्शन डी। नाउ 142 में कौन सा ऑप्शन ठीक है? द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड लिमिनेटेड फ्रॉम टू प्रिवेंट द एडी करंट। हम क्यों इसलिए करते हैं? ताकि एडी करंट उसमें पास ना हो। ऑप्शन सी। 142 में क्या है? ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और इसमें आ रहे ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट द एडी करंट। नाउ 143, a generator supply 100 volt to the primary coil of transformer, the primary have 50 turns and the secondary have 500 turns, then the secondary voltage will be what? 143 में क्या है? 142 में सी। 143 में देखें, 143 में बता रहे कि प्राइमरी वोल्टेज है 100 वोल्ट और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल में है 50 और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल में है 500। तो सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा? ये क्वेश्चन है। अब देखें, ट्रांसफार्मर में हम ट्रांसफार्मर इंडक्शन लॉ पढ़ते हैं। एंड व्हाट इज ट्रांसफार्मर इंडक्शन लॉ? ट्रांसफार्मर इंडक्शन लॉ ये है कि Vs डिवाइडेड बाई Vp इक्वल्स टू Ns डिवाइडेड बाई Np, और आपसे Vs मांग रहा है, Vs मालूम करना है, तो इसके लिए क्या करोगे? Vs इक्वल्स टू Ns डिवाइडेड बाई Np मल्टीप्लाई Vp, इसमें पुटिंग करो तो Vs कितना हो जाएगा? Ns है 500, Np है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में है 500, प्राइमरी में है 50 और वोल्टेज प्राइमरी में है 100 वोल्ट। ये कैंसिल और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100, इससे आ जाएगा 1000 वोल्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 143 ऑप्शन ए। 144, the primary of an ideal transformer have 100 turns and secondary have 600 turns, then the current in the primary is 6 times than the current in the secondary। ऑप्शन डी। 144 में ये है 143 में आ रहे ऑप्शन ए, इसमें है ऑप्शन ए। नाउ 144 को देख ले, 144 में आ रहे ऑप्शन डी। क्यों? आप सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 600 और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 100, तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का ट्रांसफार्मर में इनवर्स रिलेशन होता है। करंट इन द प्राइमरी डिवाइडेड बाय करंट इन द सेकेंडरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का ट्रांसफार्मर में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो करंट कम होगा और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न 6 टाइम कम है तो प्राइमरी में करंट सेकेंडरी से 6 टाइम ज्यादा होगा।
प्राइमरी में करंट क्यों ज्यादा होगा? प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का इनवर्स रिलेशन होगा। तो प्राइमरी में करंट ज्यादा इसलिए क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 144 में क्या आ रहा है? ऑप्शन डी। नाउ 145 को देख ले। इन आइडियल 1:8 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ideal 1:8 step down transformer, primary power have 10 kilowatt and secondary current is 25 ampere. What is the voltage across the primary coil? तो देखिए आपको ये बता रहे कि ट्रांसफार्मर में एन एस है 1 और एन पी है 8 और प्राइमरी पावर है, पावर इन द प्राइमरी कॉइल 8 किलोवाट, ठीक। और आपको सेकेंडरी करंट गिवन है, सेकेंडरी करंट है 25 एम्पेयर और क्या मालूम करना है? प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज मालूम करना है। इसके लिए आसान ट्रिक है, इसके लिए आसान तरीका है। देखें पहले आप लोग ये इक्वेशन यूज कर ले कि आई पी डिवाइडेड बाई आई एस इक्वल्स टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। पहले आप प्राइमरी में करंट मालूम करें, प्राइमरी में करंट मालूम करें। तो आप करंट किस तरह प्राइमरी कॉइल में मालूम करेंगे? आई पी इक्वल्स टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी मल्टीप्लाई आई एस। इस तरीके से आप प्राइमरी कॉइल में करंट मालूम करें और फिर क्या करें? फिर जब करंट प्राइमरी कॉइल में मालूम हो जाएगा तो आप प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज मालूम करने के लिए, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज करो कि पावर इन द प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो आप करंट मालूम करें प्राइमरी कॉइल से एन एस बाय एन पी मल्टीप्लाई आई एस। इधर पुट करें 25, इधर पुट करें 1, इधर पुट करें 8 और अब पावर है 10 किलोवाट और प्राइमरी करंट इस पे, इधर से जो प्राइमरी करंट आ जाएगा 25/8 इससे इधर पुट करें। सो यू विल गेट 3200 वोल्ट। ये जो है ना इससे आएगा। प्राइमरी करंट कितना आएगा? एन एस है 1 और एन पी है 8 और सेकेंडरी में करंट है 25, तो इससे आ जाएगा 25/8। इधर आप पुट करें 25/8, यू विल गेट 3200 वोल्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तरीका है कि पहले आप प्राइमरी करंट मालूम करें और फिर प्राइमरी वोल्टेज के लिए प्राइमरी पावर डिवाइड बाय प्राइमरी करंट। नाउ 146, द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, द इलेक्ट्रॉन रिमेन एट रेस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 146 में क्या बता रहे? 146 में बता रहे कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। 146 में देखे 146 में ये है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट में इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है QVB साइन थीटा। अब इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी तो 0 है, तो Q 0 B और साइन थीटा 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड वेलोसिटी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिमेन एट रेस्ट। 147, a charged particle is projected perpendicular to the uniform magnetic field such that the kinetic energy is 6 electron volt. What will be true about it? तो all of these will true। इलेक्ट्रॉन को जब आप इस 146 में आ रहे B, 146 में है B, 147 में देख रहे, 147 में है D, all of these। देखे आप इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर छोड़े तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ को भी फॉलो करेगा और स्पीड क्या रहेगी? स्पीड ये होगी कांस्टेंट, स्पीड होगी कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? वो भी सेम होगी। तो जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी तो फिर ये बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी होगा और इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, इसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी और ये सर्कुलर पाथ को भी फॉलो करेगा। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 148, 147 में डी। 148, when the charge is moving with uniform speed it produces constant magnetic field। moving charge produces constant magnetic field and when the charge moves with uniform speed it produces steady current, constant current, and constant current produces constant magnetic field। option C 148, option C। 148 में बता रहे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहे,
तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। 149 में देखे, इफ टू करंट कैरिंग वायर आर प्लेस्ड पैरेलल to each other in the direction same current in the same direction, the magnetic field at midpoint will be 0। 149 में बता रहे कि दो कंडक्टर्स है और उस सेम डायरेक्शन में सेम करंट कैरी कर रहे हैं, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये भी करंट I1, ये भी करंट I1, दोनों सेम करंट और सेम डायरेक्शन में। तो जब दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करे तो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड 10 है तो इसके इर्द गिर्द भी 10 होगा सपोज, तो 10 माइनस 10 0, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करे तो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला है। तो इसके लिए लिख के 0 और 149 में आ रहे 0, ऑप्शन ए ये है 149 ऑप्शन ए। नाउ 150 को देख ले, 150 इसमें देख ले, the diffusion of free electron to the unbiased p-n junction produces depletion region। the diffusion of free electron and holes, free electron और holes की diffusion जो है ना वो सेमीकंडक्टर में डिप्लेशन रीजन क्रिएट करता है। ठीक है, वो डिप्लेशन रीजन क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अनबायस्ड p-n junction produces what, डिप्लेशन रीजन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 150 में आ रहा है ऑप्शन डी, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 151 तो देखें, द बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस द p-n junction इज क्रिएटेड, ऑप्शन सी 151 ऑप्शन सी, फिक्स रोज ऑफ अपोजिटली चार्जेस। देखें डिप्लेशन रीजन में पॉजिटिव आयंस एक तरफ क्रिएट हो जाते और नेगेटिव आयंस दूसरी तरफ, एक तरफ होल्स और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन होते, और होल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होगी, E इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा आर। तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगी और इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है 151 में, ऑप्शन सी। कौन जो है ना, ये फिक्स रोज ऑफ अपोजिटली चार्जेस ये क्या क्रिएट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर पोटेंशियल, ऑप्शन सी। 152, बोथ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जर्मेनियम और सिलिकॉन किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और ये ग्रुप 4 से जो है ना ये बिलोंग करते हैं, ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 152 में है ऑप्शन ए, क्योंकि ये ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। नाउ 153, क्वेश्चन नंबर 153, द width ऑफ द डिप्लेशन रीजन ऑफ द जंक्शन इंक्रीजेस विद रिवर्स बायस। देखिए डिप्लेशन रीजन सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, ये करंट को पास नहीं होने देता। तो जब हम सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लेशन रीजन कम होता है और करंट पास होने लगता है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लेशन रीजन की वेट बढ़ती है और करंट और कम हो जाता है। तो रिवर्स बायस में डिप्लेशन रीजन की वेट बढ़ती है। तो 153 में क्या है, 153 में है सी, the width of depletion region increases in reverse bias, option C। 154, 153 में है option C। Now 154, an average voltage of 10 volt induces in 250 turn solenoid as the result of changing flux in 0.5 second। The flux change will be what? आपको बता रहे EMF equals to L या EMF equals to N टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब क्या मांग रहे इसमें मांग रहे चेंज ऑफ फ्लक्स इसमें मालूम करना है। तो ये टी इधर मल्टीप्लाई करो, EMF मल्टीप्लाई डेल्टा टी, इधर भी n पे डिवाइड करो, इधर भी n पे डिवाइड करो, इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स, ये मालूम करना है। EMF कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 10 वोल्ट का EMF प्रोड्यूस हो रहा है 154 में 10 वोल्ट का EMF प्रोड्यूस हो रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टाइम कितना है 0.5 सेकंड, और नंबर ऑफ टर्न्स है 250। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.5 5 और डिवाइडेड बाई 250, इससे आता है 1/50 और 1/50 से आता है 0.02 वेबर। दैट इज द चेंज इन द फ्लक्स एंड द करेक्ट आंसर
इन 154 इज ऑप्शन डी। 154 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये 154 में करेक्ट ऑप्शन। नाउ 155 देखिए, ये 154 था। 155 को देखे, 155 500 टन solenoid develop the average voltage of 60 volt over what time interval the flux change 0.02। देखिए, आपको फिर ही बता रहे कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहे 60 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500, टाइम कितना ले रही, टाइम मालूम करना है, और फ्लक्स में चेंज कितनी आ रही है, फ्लक्स में चेंज आ रही है 0.06 वेबर, ये फ्लक्स में चेंज आ रही है। तो देखें फार्मूला है EMF इक्वल्स टू एन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब ये डेल्टा टी मालूम करनी है, तो ये डेल्टा टी इधर आ जाएगी और EMF इधर चला जाएगा। तो डेल्टा टी के लिए फार्मूला हो जाएगा एन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो डेल्टा टी तो इधर हो गई, तो एन चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय EMF, इसमें पुटिंग कर ले। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500, और फ्लक्स में चेंज कितना आ रहा है 0.06, और EMF कितना प्रोड्यूस हो रहा है 60 वोल्ट। इसको सॉल्व करें, एक जीरो के साथ, एक 0 पॉइंट के साथ, 30 डिवाइडेड बाय 60 0.5 सेकंड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 155 में आ रहे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन 155, क्योंकि 0.5 सेकंड आ रहे, 0.5 सेकंड ऑप्शन सी में है। तो ये है टू फाइंड द टाइम इन विच द फ्लक्स चेंज, ये टाइम मालूम करने के लिए फार्मूला था ना। 156 टू 300 हेनरी कॉइल्स इन सीरीज, एक कॉइल का इंडक्टेंस है 300, दूसरा क्या है 300, कनेक्टेड इन सीरीज हैव द टोटल इंडक्टेंस ऑफ व्हाट। दो इंडक्टर्स है, हर एक की वैल्यू 300 है, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो नेट इंडक्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। सीरीज में इंडक्टेंस ऐड होता है, सिंपल ऐड होता है 156 में। तो 156 में एक का इंडक्टेंस है 300 हेनरी, दूसरे का 300 हेनरी, नेट इंडक्टेंस होगा 600, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 156 में आ रहे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ current changing from 8 ampere 157, current changing from 8 ampere to 12 ampere in 1 second induces 20 volt of EMF, what is the value of inductance। current change हुआ 157 में, देखे current change हुआ 12 एम्पेयर से 8 एम्पेयर तक, तो करंट में कितनी चेंज आ गई, चेंज इन करंट आ गई 4 एम्पेयर, और कितना टाइम इसने लिया 1 सेकंड का, और इसने कितना EMF वोल्टेज प्रोड्यूस किया 20 वोल्ट का। और क्या मालूम करना है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इक्वल्स टू EMF डिवाइडेड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कितना EMF प्रोड्यूस हुआ, EMF प्रोड्यूस हुआ 20 वोल्ट का, और करंट में कितना चेंज आया 4 एम्पेयर का, और ये चेंज कितने टाइम में आया, ये चेंज 1 सेकंड में आया। 20 डिवाइडेड बाय 4 यू विल गेट 5 हेनरी, दैट इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। 157 में आ रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये है ऑप्शन सी। 157 में आ रहे ऑप्शन सी। 158 if both the number of turns and the core length become double what happens to the inductance of the coil। देखें इंडक्टेंस का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ 158 में देखें इंडक्टेंस का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्ट स्क्वायर का रिलेशन है और लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल करें और लेंथ को भी डबल करें। जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 है, इंडक्टेंस 4 टाइम बढ़ेगा, और लेंथ को डबल करते हैं तो इंडक्टेंस 2 टाइम कम हो जाएगा, 4L/2 2L, और इंडक्टेंस डबल हो जाएगा। ऑप्शन इसमें आ रहे बी। When number of turns double, inductance become 4 time, and when length double, inductance become half. So increases by 4 time, decreases by 2 time, net effect become double, and B is the correct option। 159 इसमें आ रहे B, 158 में आ रहे B। Now 159 में देखें, 159 में जो है ना
The EMF of 16 volt is induced in the coil of inductance 4 Henry. कितना EMF प्रोड्यूस हो रहा है? 16 वोल्ट, और इंडक्टेंस कितना है? 4 हेनरी. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट? 159. देखे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मांग रहा है, ये मालूम करना है, तो सुन ले. EMF इक्वल्स टू L टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बराबर हो जाएगा EMF डिवाइडेड बाय L. L क्या है? L है इंडक्टेंस. तो देखे, आपको EMF गिवन है. EMF कितना गिवन है? 16 वोल्ट, और इंडक्टेंस कितना है? 4. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो जाएगा? 4 एम्पेयर पर सेकंड. 4 एम्पेयर पर सेकंड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 159 में क्या आ रहा है? ऑप्शन डी. 159 में ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, लास्ट वन. समझ आ गई इसकी? तो इसके लिए है ये इक्वेशंस. नाउ 160 में देखे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट अपोजेस द चेंज इन करंट. 160 में क्या बता रहे? ये थे 159. देखे, 160 में बता रहे कि कौन सा सर्किट एलिमेंट करंट के चेंज को अपोज करता है. तो 159 में आ रहे, 160 में आ रहा है इंडक्टेंस बी. कौन सा सर्किट एलिमेंट करंट के चेंज को अपोज करता है? देखे, रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, डायरेक्ट करंट को, और इंडक्टेंस जो है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है. अल्टरनेटिंग करंट को कौन अपोज करता है, या करंट के चेंज को कौन अपोज करता है? ये इंडक्टेंस अपोज करते हैं. ऑप्शन बी 160 में आ रहे, ऑप्शन बी. क्योंकि इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन द करंट. जब करंट बढ़ेगा, इंडक्टेंस टेंड्स टू डिक्रीज एट, और जब करंट कम होगा तो इंडक्टेंस टेंड्स टू इंक्रीज एट. ये जो है इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, करंट के चेंज को अपोज करना. तो एसी करंट को कौन अपोज करता है? इंडक्टेंस. और डीसी करंट को कौन अपोज करता है? रेजिस्टेंस. नाउ 161, हायर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. तो ऑप्शन डी में है लॉन्गर द डिले. ये ऑप्शन डी में ये जो वर्ड है लॉन्गर द डिले है, ये लॉन्गर द डिले इन एस्टेब्लिशिंग द स्टेडी करंट थ्रू इट. जिस कॉइल का इंडक्टेंस 161, जिस कॉइल का इंडक्टेंस ज्यादा होगा, कॉइल का इंडक्टेंस ज्यादा होगा, इंडक्टेंस एल है, रिप्रेजेंटेड विद एल. जिस कॉइल का इंडक्टेंस ज्यादा होगा, वो उसमें, उस कॉइल में करंट एस्टेब्लिश होने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इंडक्टेंस उस कॉइल में करंट को बढ़ने नहीं देगा, करंट को चेंज होने नहीं देगा. इसलिए करंट जो पीक वैल्यू तक पहुंचेगी तो उसमें टाइम लगेगा. लॉन्गर द डिले. ऑप्शन डी 161 इसमें आ रहे, ऑप्शन डी. 161 में कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी. नाउ 162 को देख ले. एज पर Faraday law of electromagnetic induction, EMF induces in the conductor whenever it cuts the magnetic flux. 162 में सी में क्या ऑप्शन है? 162 में सी आ रहे. 162 में बता रहे कि अकॉर्डिंग टू Faraday law of electromagnetic induction, the EMF produces when the surface lies perpendicular to the field. अगर हम सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख के उससे फ्लक्स मैक्सिमम पास होगा, लेकिन उसमें चेंज नहीं आएगा. फिर लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इससे तो फ्लक्स पास होगा, लेकिन कांस्टेंट पास होगा, उसमें भी चेंज नहीं आएगा. ईएमएफ के लिए क्या जरूरी है? फैराडे लॉ में ईएमएफ के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है. ऑप्शन ए और बी में फ्लक्स होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, उसमें चेंज नहीं आएगा. और ऑप्शन सी में क्या बता रहे? कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स. कट्स मीन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स. जिधर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उधर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. 162 में है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्योंकि उधर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. 163, ये है 162. 163, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल इंक्रीज अंडर ऑल कंडीशन एक्सेप्ट. मतलब 163 में बता रहे कि इस हर केस में इंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कौन से केस में इंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा? तो ऑप्शन ए, व्हेन मोर लेंथ फॉर द सेम नंबर ऑफ टर्न्स इज प्रोवाइडेड. आपको बता रहे कि इंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन किस केस में इंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा? तो इंडक्टेंस का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट स्क्वायर और लेंथ के साथ इनवर्स. जब आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा बल्कि इंडक्टेंस कम होगा. इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन यू प्रोवाइडेड मोर लेंथ, when you provided more length, the inductance become less या the inductance decreases. इस क्वेश्चन में बता रहे कि कौन सा ऑप्शन आप,
कौन से ऑप्शन की वजह से इंडक्टेंस कम होगा, किसकी वजह से इंडक्टेंस कम होगा, तो लेंथ को ज्यादा करने से। 164 which of the following factor is the self inductance associated with the coil is independent। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता 164, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना ये 163 है। 163 में क्या आ रहे, 163 में आ रहे ए, 163 में है ए 164। सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड नहीं कर रहे 164, इंड्यूस वोल्टेज, टाइम, करंट और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। और कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 165 द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। 165 में क्या बता रहे कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। 165 मैग्नेटिक फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों कंडक्टर्स में जो करंट है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन और इनके बीच जो डिस्टेंस है उसके साथ इनवर्स रिलेशन। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। 165 में बता रहे कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 165 में क्या आ रहे, ऑप्शन डी। 166 the magnetic flux link with the coil is inversely proportional to none of these। 166 में बता रहे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का किसके साथ इनवर्स रिलेशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का किसके साथ इनवर्स रिलेशन है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड cos ऑफ थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का किसी भी क्वांटिटी के साथ इनवर्स रिलेशन नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, none of these। 167 when the magnetic field is parallel to the surface then the magnetic flux through the surface will be zero। option B। 167 में क्या है, option B। 166 में क्या है, 166 में है D, none of these। और 167 में है option B। क्या है option B? 167 में बता रहे कि जब आप किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने पैरेलल रखते, किसी भी सरफेस को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज ये फिंगर्स क्या है, ये फिंगर्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये फिंगर्स क्या है, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये फिंगर्स जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो जब आप मैग्नेटिक सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने पैरेलल रखते हैं तो कुछ लाइंस ऊपर से पास होंगे, कुछ नीचे से, बॉडी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सरफेस को परपेंडिकुलर रखोगे तो मैक्सिमम लाइंस उससे पास होंगे, मैक्सिमम लाइंस इस बॉडी के सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या चाहिए कि आप सरफेस को परपेंडिकुलर रखें। अगर आप सरफेस को पैरेलल रखेंगे तो उससे लाइंस पास नहीं होंगे और फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, 167 में क्या ठीक है, ऑप्शन बी व्हेन, और इसमें है जीरो। व्हेन द बॉडी प्लेस पैरेलल, सरफेस प्लेस पैरेलल, द मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। 168 which change will cause the decrease in potential difference across the secondary coil। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ होता है वो किस वजह से कम होगा, तो देखिए म्यूचुअल इंडक्शन में सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ होता है सेकेंडरी एस वो बराबर होता है म्यूचुअल इंडक्शन, और इसके लिए है ईएमएफ इक्वल्स टू एम एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो अब आपको बता रहे कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ किस तरह कम होगा 168 में, ईएमएफ तब कम होगा जब आप एम को कम करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कब कम होता है, जब दो कॉइल्स के बीच आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, जब दो कॉइल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा, और जब म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कम होगा, और इसमें है इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल। ऑप्शन ए। 168 में क्या आ रहा है, 168 में आ रहा है ऑप्शन ए, ये 168 में। 169 1 वेबर इज द सेम दैट ऑफ 1 वोल्ट इनटू सेकंड। 1 वोल्ट इनटू सेकंड इक्वल्स टू 1 वेबर, और इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है 169 में, 169 में ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए। नाउ 170 द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर।
सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल ऑलमोस्ट 1 होता है, 1, 0.7 राउंड अप कर ले तो 1 आता है। 170 में आ रहे सी, 170 में सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना है, ऑलमोस्ट 1 वोल्ट। 170 में आ रहा है, 170 में सी 1 वोल्ट। नाउ 171 में क्या आ रहे, अब CMCQs जो है ना ये बाकी है 171। क्वेश्चन नंबर 171, 171 में देखे, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम स्पीड, विच वन डिफ्लेक्टेड मोर। 171 देखे, 171 में बता रहे डिफ्लेक्शन का फार्मूला है QB डिवाइडेड बाय MV। अब क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसको सेम स्पीड के साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया तो कौन सा ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, इनको दोनों को सेम स्पीड प्रोवाइड किया गया। डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इलेक्ट्रॉन का मास कम, डिफ्लेक्शन ज्यादा। विच वन डिफ्लेक्टेड मोर, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो 171 में आ रहे इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए। 171 में क्या आ रहे, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। ये हुआ 171। 172 को देख ले, द चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली मीन परपेंडिकुलर, विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। देखे, चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा और उसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगी। चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। जब स्पीड सेम होगा तो फिर क्या चीज सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और स्पीड दोनों क्या है, स्केलर। मोमेंटम सेम नहीं होगा क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है, ये पार्टिकल बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। वेलोसिटी वेक्टर है, ये बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं नॉर्मली परपेंडिकुलर, तो कौन सी क्वांटिटी सेम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी और मोमेंटम और वेलोसिटी सेम नहीं होगी। ऑप्शन ए 172 में आ रहे, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्यों सेम होगी, क्योंकि ये दोनों स्केलर है और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। इसलिए स्केलर क्वांटिटीज में चेंज नहीं आएगा लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज चेंज होगी। नाउ 173, what will be the ratio of proton to alpha particle when projected in the uniform magnetic field normally? What will be the radii ratio of proton to alpha particle? 173 में देखे, अब when projected with the same kinetic energy, जब प्रोटॉन और अल्फा को सेम काइनेटिक एनर्जी दे तो रेडियाई रेशो क्या होगी। तो रेडियस के लिए फार्मूला है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट डिवाइडेड बाई q इंटू बी। और q क्या है, चार्ज, और b मैग्नेटिक फील्ड। 2 कांस्टेंट m मास और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और अल्फा की। देखे, अल्फा और प्रोटॉन को सेम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक, काइनेटिक एनर्जी सेम, और 2 तो कांस्टेंट है और उसको सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, तो फिर रेडियाई किसकी ज्यादा होगी या उसकी रेडियाई रेशो क्या होगी। तो देख ले, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M अंडर रूट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। तो देखे, अल्फा का चार्ज प्रोटॉन से 4 टाइम, अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 टाइम ज्यादा है। द मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखे, जब अल्फा का मास 4 टाइम ज्यादा है इसलिए उसकी रेडियाई 4 का अंडर रूट 2, उसकी रेडियाई 2 टाइम ज्यादा। और अल्फा का चार्ज जो है, चार्ज वो भी प्रोटॉन से 2 टाइम ज्यादा है। अल्फा पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा का चार्ज प्रोटॉन के डबल है। जब चार्ज प्रोटॉन का डबल है तो रेडियस 2 टाइम कम, तो ये कैंसिल, और अल्फा और प्रोटॉन की रेडियाई सेम 1:1। ऑप्शन सी 173 में आ रहे, ऑप्शन सी 173, ऑप्शन सी। 174 को देखे, होल्स आर माइनॉरिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स माइनॉरिटी होते हैं और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं और होल्स मेजॉरिटी। सो
Holes are minority in N-type semiconductor. 174 option A. 174 option A. और 175 में क्या आ रहा है? Second last. The EMF induces in Faraday law does not depend on the resistance of the coil. Faraday law में जो EMF प्रोड्यूस होता है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, और EMF का फार्मूला क्या है? N टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वो चेंज इन फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी और नंबर ऑफ टर्न्स पे भी। किस पे डिपेंड नहीं करता? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 175 में आ रहे ऑप्शन बी, एंड द लास्ट वन 176। 176, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल इज 6, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 6, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 1, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन? दिस ट्रांसफार्मर इज स्टेप डाउन। जब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं सेकेंडरी से, तो फिर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। एन पी ग्रेटर देन एन एस, तो फिर ये ट्रांसफार्मर ज्यादा वोल्टेज को क्या करेगा? कम करेगा। ये ज्यादा अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम में कन्वर्ट करेगा, और इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।